A popular author said, एक जाने माने लेखक ने कहा sky belongs to the eagles, कि आकाश जो है वो काबों का है, even during storms. तूफान के समय में भी। All those ones who are part of this devotional, सारे लोग जो डिवोशनल को देख रहे हैं, you know that we are in a series. आप सभी जानते हैं कि हम श्रृंखला में हैं And by His grace, we have titled this series as Lessons on Waiting Upon the Lord. और उनके अनुग्रह ही से इस श्रृंखला का शीर्षक है Lessons on Waiting Upon the In Lord। this particular series, we have already seen two parts, और इस श्रृंखला में सीरीज में हमने 2 भागों को देख लिया है and the Lord wants to speak to us yet again in this third part. और इस तीसरे भाग में परमेश्वर फिर से हमसे बात करना I want us चाहते to हैं। quickly open our Bibles to Isaiah 40 verse 31. हम चाहते हैं पवित्र शास्त्र में हम देखें यशायाह की किताब 40वां अध्याय 31वां वाक्य। It says, "But those who wait on the Lord shall renew their strength." Further down, this is where I want us to emphasize, I want to stay, I want us to learn from. They shall mount up with wings like eagles. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। Not many people are aware of this. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते There हैं। are 4 types of birds that you can see on earth. और इस पृथ्वी पर हम 4 प्रकार के पक्षियों को देखते हैं। Number 1, they're called the earthly और birds. पहले पक्षियां जो है वो जमीन पर रहने वाली पक्षियां These हैं। birds have the body of a bird. इन पक्षियों के पक्षी के समान आकार रहता है, ये They शरीर have रहता 2 है। wings. इनके 2 पंख रहते हैं They have feathers on their body, और उनके शरीर पर पर रहते हैं, but they cannot rise up into the air. पर जो है वो हवा में उड़ नहीं पाते हैं। They are earthly birds. वे जमीन पर रहते हैं Usually stay on ground. और आमतौर से जो है जमीन पर ही रहते They हैं। peck and they eat. वे जो है चुगते हैं, खाते हैं। I'm sure that you must have seen some hens and the ducks. आपने जो है बदक को देखा होगा, आपने जो है मुर्गी को देखा You know, होगा। these are the earthly birds. ये जो है जमीन पर रहने वाले पक्षियां हैं। If you look at it very closely, अगर आप नजदीक से देखते if हैं, you spiritually understand it, अगर आप आत्मिक रूप से समझते you हैं, can see these earthly birds in the church today. कलीसिया में भी इस प्रकार के लोग दिखाई पड़ते You can हैं। find them among the Christians. आप देखते हैं मसीह लोगों के बीच में ऐसे भी लोग होते हैं। They have the Bible, पवित्र शास्त्र उनके पास rather है, the same Bible, सेम पवित्र शास्त्र उनके पास है, the same triune God, त्रिएक परमेश्वर उनके पास है the same promises. और वही वादे उनके भी हैं। But unfortunately, they do not know how to use it. लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना They है। do not know how to use the wings that they have उनको मालूम नहीं है कि जो पंख उनको दिए गए हैं उसका उपयोग कैसे करना and है how to use their feathers. और उनके परों का उपयोग कैसे करना That है। is why, like chicken, they keep on scratching the ground and eat from the ground. और इसीलिए जो है मुर्गियों के समान जो है वो कुरेदते रहते हैं और चुगते रहते हैं और No. जमीन से खाते हैं। Number 2 type that you can see, और दूसरे प्रकार के जो पक्षी हैं, they're called the flappy birds. ये जो है अपने पंखों को मारते रहते हैं। And these birds do have the body of a bird. ये इनका जो है पक्षी का शरीर होता है, They do have the 2 wings इनके 2 पंख होते हैं, and they have the feathers. उनके पर भी होते हैं। The problem with these birds is this, that they use lot of strength in flapping their wings to get to where they want to go. और इन पक्षियों की ये समस्या होती है कि वो अपने परों को जो है फड़फड़ाते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं वहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे वो जाना चाहते Their हैं। dependence on the wings is way too much. और उनकी जो निर्भरता अपने पंखों पर है वो बहुत ज़्यादा है। As long as they're flapping, और जितना देर तक वो अपने पंखों को फड़फड़ाड़े होते हैं they would be able to fly तब तक जो है वो हवा में उड़ पाते and they हैं would be able to reach a certain distance. और थोड़ी दूरी तक पहुँच पाते हैं। They cannot go too far ज़्यादा लंबी दूरी तक वो जा नहीं पाते हैं because they do not have the strength to keep on flapping. क्योंकि उनके परों में, उनके पंखों में वो बल ही नहीं रहता है। I'm sure that you must have seen the sparrows, you must have seen the crows. आपने जो है कौवों को देखा होगा, स्पैरोज को देखा होगा, The empty number of birds who are just flappy birds. और ऐसे जो पक्षियां हैं जो जिनको फ्लैपी बर्ड्स कहा They जाता use है, their strength to get to where they want अपने to go. पंखों को जो है फड़फड़ाते हैं या पंखों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं जाने के लिए जहाँ पे उनको जाना होता This है। type of people that you can see even in the church. देखिए इसी समान देखिए ऐसे प्रकार के लोगों को हम कलीसिया में देखते They हैं। are part of the church and they come to the church every single Sunday. कलीसिया के भाग हैं, ये हर रविवार वो कलीसिया में आते तो हैं,
But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश after that Sunday, उस रविवार के बाद what they do the next 6 days, अगले 6 दिन वो क्या करते हैं only they know. केवल वो ही जानते हैं। They keep flapping their wings. वो अपने पंखों को जो है चलाते रहते हैं। Their favorite statement is, और उनका मन पसंदीदा वाक्य ये है, God stands, God supports who support themselves. वो ये कहते हैं कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं। And such ones, और ऐसे प्रकार के लोग because their dependence is on their own strength, क्योंकि वो अपने खुद के बल पर इतना निर्भर है, they cannot go too far in their spiritual journey. और वो अपने आत्मिक यात्रा में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। Nor they can go too far in their achievements on earth. और स्वाभाविक रूप में भी वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं, Because they are limited. क्योंकि वे सीमित है They fail to understand their limit. और वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। And the third type of birds that we can see, और तीसरे प्रकार के पक्षियों को जो हम देखते हैं, they are the flying birds. ये उड़ने वाले पक्षियां हैं। These are the smart birds. ये बहुत ही चतुर है। And these birds understand the power of the wind. और ये पक्षियां जो है हवा के शक्ति को समझते हैं। They never try to fly against the wind. ये पक्षियां जो है कभी हवा के बहाव के या हवा के चलन के विरुद्ध में ये उड़ते नहीं हैं। They want to use the power of the wind to get to where they want to go. ये पक्षियां जो है हवा के उस बहाव का उपयोग करना चाहते हैं या करते हैं जहां पे उनको जाना All है। they do is बस ये करते हैं, just flap their wings and get onto into the wind. और अपने पंखों को जो है फैलाते हैं, चलाते हैं और हवा में जो है वो उड़ने लग जाते हैं। Once they are in the wind, और एक बारी जब हवा के चलन में वो होते हैं, they just maneuver themselves in the wind and get to where the wind is going. तो हवा के बहाव में वो अपने आप को जो है संभालते हुए चले जाते हैं जहां पे उनको जाना होता है। Such kind of Christians can be seen in the church. ऐसे प्रकार के मसीह लोग कलीसिया में दिखाई पड़ते हैं। These are amazing Christians. बहुत ही अद्भुत मसीह लोग हैं। Meat eating Christians. ये जो है मांस को खाने वाले मसीह लोग These are हैं। the ones who understand the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के ये लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को पहचानते जानते हैं। They don't resist the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विरुद्ध में नहीं खड़े रहते They हैं। fly with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ जो है वो चलते हैं। They make Him their strength. पवित्र आत्मा को अपना बल बना लेते हैं ये लोग। Because they make Him their strength. क्योंकि पवित्र आत्मा को अपना बल बना लेते हैं, They get to reach far and wide. वो बहुत ही दूर तक जाते हैं। I do not know how many of you have heard of. हम नहीं जानते हैं कितने लोगों ने सुना हुआ है। There are many birds like geese and pelicans and the hummingbird. All of them are migratory birds and they go thousands of miles. गीस, पेलिकन और हमिंग बर्ड ये ऐसे पक्षियां हैं जो दूर दूर तक उड़ती हैं। And they don't use their strength to travel like that far. और वो अपने पंखों को इतना तकलीफ नहीं देते हैं दूर तक उड़ने के They लिए। use the winds. वो हवा के बहाव का प्रयोग करते हैं। I pray that you may be one such in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि आप जो है ऐसा हो यीशु मसीह के नाम A से, meat eating Christian. एक ठोस आहार खाने वाला मसीह। And then fourthly और चौथी बात, and finally, आखिर की बात, I cannot say birds मैं इनको पक्षियां करके नहीं बुला सकता हूँ because there is not too many of them. क्योंकि ये ज्यादा नहीं है। There's just one bird. सिर्फ ये एक पक्षी है And that one bird is eagle. और ये एक पक्षी जो है उकाब है। And this bird called eagle, it does not fly, it soars. और ये उकाब पक्षी जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई में उड़ते हैं। It knows to fly and it knows to soar. ये उड़ना भी जानते हैं और ऊंचाई पर उड़ना In जानते fact, हैं। it is known to soar more than it knows to fly. और उड़ने से ज्यादा जो है बिना अपने पंखों का प्रयोग करते बिना अपने पंखों को फड़फड़ाते जो है वो केवल अपने पंखों को फैलाकर ही उड़ सकते हैं काफी दूर तक। Firstly, you can see और पहली बात हम इनमें देखते that हैं this bird does not dwell on ground. कि ये जमीन पर रहने वाले नहीं है उकाब। It lives under the hilltop. और ये उकाब जो है पहाड़ के शिखर पर रहते हैं। And you can see it in the top cliffs. और आप जो है पहाड़ के शिखर पर इनको देखते And when हैं it takes off, और वो उड़ते हैं it uses the power of the wind और वो हवा के बहाव का प्रयोग करते हैं until it reaches a certain place. जब तक वे एक जगह में पहुंचते नहीं हैं। And as it begin to rise up, और जैसे ही उड़ने लग जाते हैं और ज्यादा, and it uses
solar thermal energy. और ये जो है सूर्य और थर्मल एनर्जी ऊर्जा का प्रयोग करते It हैं। uses the solar thermal energy सोलर थर्मल एनर्जी, सूरज का थर्मल ऊर्जा का प्रयोग करते to हैं break through and soar into the highest of the skies. कि बहुत ही ऊंचाई में ये उड़े। You know what? आप जानते हैं, This bird understands the power of the wind, और ये पक्षी जो है हवा के बहाव के सामर्थ्य को पहचानता but है, it does not come under the storm, which is wind, blowing just wildly. लेकिन वो जो है तूफान के उस हवा, वो हवा जिसका कोई दिशा नहीं है, उसके चपेट में नहीं आता है। But an eagle knows the power of the wind. लेकिन एक उकाब जो है ये अपने हवा के चलन के सामर्थ्य को समझता है। It just rises up with the power of the wind, वो जो है हवा के उस शक्ति से ऊंचा उठता है, but moves more in the solar thermal energy. लेकिन उससे भी ज्यादा जो है सोलर थर्मल एनर्जी या ऊर्जा का उपयोग करके उड़ता है। Because it knows how to use its wings, its feathers, और क्योंकि ये उकाब जानता है कि अपने पंख का कैसा उपयोग करना, अपने परों का कैसा उपयोग करना, it knows it's the wind and it is most importantly the sun who's strengthening it. और ये उकाब जानता है कि हवा और सूरज जो है इसको शक्ति देता है। It doesn't come under the power of the storms. ये जो है तूफानों के चपेट में नहीं आता। It doesn't come under the dark and dirty clouds that can come upon the land. काले बादल जो है उनको रोक नहीं सकता। फिर They know, these eagles know that they can break through those dark clouds. और ये उकाब जानते हैं कि ये जो काले बादल के परे जो है वो जा सकते हैं, Because they know sun is beyond क्योंकि वो those dark clouds. क्योंकि वो जानते हैं ये काले बादल के परे जो है सूरज है, And they aim themselves to reach there. और वो वहां पे पहुंचना चाहते हैं, वो सूरज के पास पहुंचना चाहते My हैं। brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, let me tell you this very मैं clearly. आपसे ये कहूँ स्पष्ट रीति से, This is exactly what the Lord Almighty wants us to be. और ऐसा ही परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम हो। Look at the verse, what it says. आप देखिए वाक्य में क्या लिखा हुआ है। It says, they shall mount up with wings like eagles. लिखा हुआ है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाब की नाई उड़ेंगे। You know, the eagles know how to use the wings. और उकाब भली बात ही जानते हैं कि अपने पंखों का कैसे उपयोग वो The करें, eagle know every feather, how to use every feather that's on its body. और अपने शरीर में हर एक परों का कैसा उपयोग करना चाहिए वो जानते हैं। These people know how to use every promise of God. और देखिए उकाब के समान लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वादों का कैसे उपयोग करना होता है, They know the power of the promises. और वे जानते हैं कि परमेश्वर के वादों में कितना सामर्थ्य है, They know the power that's instilled within और वे themselves. जानते हैं कि उनके अंदर जो सामर्थ्य वास निवास करता है उसमें वो कैसा है, क्या है, And they know it. और वो जानते हैं। And that is why they know how to use it. That is why they can go beyond, far and beyond than anyone else. और क्योंकि वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है, और इसीलिए जो है बाकी की तुलना में या बाकियों की तुलना में जो है वो दूर तक जाते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी if you बहनों, know how to use the promises, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर के वादों का कैसे उपयोग किया if you जाए, know if you have the idea, the power that resides inside you, अगर आप में आपको ये कल्पना है कि आपके अंदर जो है कैसा सामर्थ्य है, you will be like that saint who waits upon the Lord. आप उस संत के समान होंगे जो परमेश्वर यहोवा की बाट को जोते I हैं। repeat it again, you will be like that saint who waits upon the आप Lord. उस संत की तरह होंगे जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर की बाट को जोते हैं। No storm can stop you. कोई तूफान आपको फिर रोक नहीं सकता, No dark clouds can put you down. कोई काला बादल जो है आपको निराश नहीं कर You सकता will है। break through every discouraging dark clouds आप जो है निराश करने वाले हर एक काले बादल को चीर कर आगे बढ़ोगे, and move towards the sun who strengthens you. और आप चीर कर आगे बढ़ते हुए उस सूरज के पास जाओगे, उस परमेश्वर के पुत्र के पास जाओगे जो आपको बल देते Who हैं, puts his power in you. जो अपना बल आप में डाले हुए हैं। And such ones, और ऐसे लोग they are the ones who are going to make
great and mighty exploits in the kingdom of God. ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में महान कामों को करेंगे। And Elijah did not live on the ground too long. एलिया जो है वो भूमि पर नहीं बना रहा काफी He समय did तक, not mingle with the rest of the world too often. और बाकी की दुनिया के साथ जो है मेल जोल ज्यादा उसने नहीं की। And John the Baptist did not mingle with the world too much. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है दुनिया के लोगों के साथ उसने मेल मिलाप नहीं किया। They were more intimate with God. परमेश्वर के साथ जो है वो गहरे रिश्ते में They थे, understood the power of waiting. और वे समझे परमेश्वर की बात को जोना इसका क्या मतलब है। And most beautifully, और सबसे or सुंदर rather बात, most importantly, सबसे महत्वपूर्ण बात, our Lord Jesus, हमारा प्रभु यीशु, as much He only came down to render the works. और वे आए ताकि उन कामों को करे, Or rather, He came down from the mountaintop. He came down only to render the works of the Lord. पहाड़ की शिखर से वो नीचे आए, और जब वे नीचे आते थे तो वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए आते थे। But most of the time He spent on the mountaintop praying, seeking and knowing the Lord. लेकिन ज्यादातर समय जो है वो पहाड़ के शिखर पर समय को या पहाड़ पर समय को बिताते थे यहोवा से बातचीत करने के लिए, यहोवा को जानने के लिए, उनकी इच्छा को When पहचानने the के लिए। rest of the world was sleeping and snoring, जब बाकी के दुनिया के लोग जो है सो रहे थे और खर्राटे ले रहे थे, Jesus was on the mountaintop, यीशु मसीह जो है पहाड़ पर थे, waiting upon the Lord. परमेश्वर की बात को जो रहे थे। He was that eagle, वो गाब है somebody who set an example for जिन्होंने us. हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा हुआ He है, took off from there. और वहां से ही उन्होंने टेक ऑफ किया। All the works that He did on the ground, जो भी काम उन्होंने जमीन पर In किया, the पृथ्वी पर valley, किया, in the तराई valley. में किया, those are the works that are the result of what He achieved in waiting in the presence of और God. वे वो सारे काम जो है इसीलिए हुए क्योंकि ऊंचाई में परमेश्वर की उपस्थिति में बने Do रहे। you want to be one such person? क्या आप ऐसे व्यक्ति बने रहना Do चाहते हैं you या want होना to चाहते हैं? do you want to be an Elijah? क्या आप एलिया की तरह होना चाहते Do you हैं, want to be John the Baptist? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की Or तरह, even mightier than them? या उनसे भी ज्यादा You सामर्थ्यशील? have the power to be mightier than them. आप में वो सामर्थ है कि आप उनसे भी ज्यादा सामर्थ्यशील हो जाएं। If you want to be, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा हो, you have to learn to wait in the presence of तो God. जरूरी है कि आप इस बात को सीख लीजिएगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बने रहना है। Remember, याद रखिएगा, but those who wait on the Lord shall renew their strength. जो परमेश्वर की बात को जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They shall mount up with the wing, like the wings of eagle. वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। I believe that you heard what the Lord want to say. मेरा ये विश्वास है कि आपने सुना जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। He promises to make you like an eagle, वे वादा करते हैं कि हम उकाब की नाई होंगे, to soar and get to where He expects you to. ताकि हम ऊंचाई में उड़ पाए और पहुंच पाए जहाँ पे वे चाहते हैं कि हम पहुंचे। With this particular thought, और इस विचार के साथ if you seek to be one such, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आप हो, make up your mind अपने मन को बना लीजिएगा to spend a sound and solid time in the presence कि of God परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल ही एक उम्दा समय आप and बिताइए, stay on this resolution. और इस जो बात को आपने निर्धारित किया है इसमें बने रहना। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, the Lord shall strengthen you in the name of Jesus परमेश्वर Christ. हमको बल प्रदान करेंगे मसीह यीशु के नाम से। This I want you to go into the day. आप दिन में जाइएगा, Have an awesome day. आपका अद्भुत दिन जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।